असिस्टेंट कमिश्नर रघुराज जी, तो हमारा 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी के तरफ से और पूरा डिमा हासाओ को रिप्रेजेंट करके हमारे तरफ से श्रीमती दीपाली हापिला जी आपको हमारा डिमासा रीशा से संबोधित करेंगे। और जैसे कि आपको पता है, ये 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी के तरफ से हम लोग ने 12 जुलाई से ये अनशन में, हंगर स्ट्राइक में हम यहाँ बैठे हैं। तो हमारा कुछ चार्टर ऑफ डिमांड्स है। तो आज 7वां दिन है और आपका ऑफिस के तरफ से योर काइंड सेल्फ आप लोग आए हैं हमारा ये मांग को सुनने के लिए। और हम आशा करते हैं कि ये जो हाईएस्ट अथॉरिटी में जहाँ हम इसको भेजना चाहते हैं उसका डेस्टिनेशन में ये पहुँच जाएगा बोल के हम आशा रखते हैं, द होल पीपल ऑफ डिमा हासाओ एंड कार्बी आंगलोंग। तो आपको ये मेमोरेंडम सबमिट करने के पहले मैं इसका रीड आउट करता हूँ फॉर ऑल द पीपल। मेमोरेंडम सबमिटेड टू श्रीजुत अमित शाह, Honorable Union Home Minister, Government of India, New Delhi, by 6th Schedule Protection Committee, SSPC, Dima Hasao District, Assam, dated 18th July 2024. The subject है urgent appeal for the implementation of Article 244 Clause A and other key demands for Dima Hasao District under 6th Schedule. Honorable Sir, we the indigenous people of Dima Hasao District, on behalf of the 6th Schedule Protection Committee, respectfully submit this memorandum to highlight our long-standing demands and the historical injustices faced by our communities. Our peaceful protest, including a week-long hunger strike started on the 12th of July 2024, is a testament to the urgency of our appeals. Our key demands: number 1, implementation of Article 244 Clause A. Following the Assam Reorganization Act, North Kachar Hills was given a choice to join the soon-to-be-created state of Meghalaya or remain in Assam. We chose to stay in Assam, demonstrating our loyalty. In return, we were promised an autonomous state, leading to the introduction of Article 244 Clause A in the Constitution. Unfortunately, even after 55 years, this promise remains unfulfilled. BJP's unfulfilled promise. Since 2014, the BJP has assured the implementation of Article 244A in every election manifesto presented to the people of Dima Hasao and Karbi Anglong. The people have trusted and voted for the party in 7 consecutive elections, including Lok Sabha, Assam Assembly and Autonomous Council election. Yet, post-election, the topic fades away into obscurity. Without the immediate implementation of Article 244 Clause A, the people will lose faith not only in the BJP but also in our constitution and democracy. Hence, we are compelled to undertake a hunger strike from 12 July 2024 in Haflong, Dima Hasao. Our demand number 2, creation of a separate Lok Sabha constituency for Dima Hasao district, along with all the other indigenous tribal communities. The Dimasas, being one of the earliest indigenous communities of Assam and Northeast India, have not had adequate representation in the Lok Sabha. Additionally, Dima Hasao has historically been represented by only one MLA in the Assam Assembly. We demand the creation of a separate Lok Sabha constituency for Dima Hasao and an increase in assembly seats, ensuring proper representation reflecting our demographic and cultural identity. Our demand number 3, stop the dilution of 6th Schedule and revise the Constitution 125th Amendment Bill 2019. It is with deep concern that we, the indigenous people of hill tribes of Assam, specifically from North Kachar Hills Autonomous Council and Karbi Anglong Autonomous Council, express our disappointment and sense of injustice regarding the Constitution 125th Amendment Bill 2019. Despite repeated assurances and promises made to us, the suggestions and concerns raised by stakeholders from NCHSC and KAAC were not taken into account or incorporated into the final bill presented to the Lok Sabha and Rajya Sabha. This oversight is a grave injustice to the hill tribe people of Assam, who are the indigenous sons and daughters of the soil. We urge the Honorable
Home Minister and the Government of India to address this oversight and ensure that legitimate concerns and suggestions of the NCHSC and Karbi Anglong Autonomous Council and all the stakeholders are duly considered and incorporated. This step is essential for upholding the rights, dignity and autonomy of the indigenous hill tribes of Assam. Demand number 4, increase Assam Assembly seats based on 2021 census. Assam Assembly seats should be increased based on the 2021 census. Despite maintaining a healthy population ratio, the indigenous people of Dima Hasao should not be neglected, as the indigenous son of the soil. Our historical and cultural significance should be recognized and our representation in the Assam Assembly should be enhanced accordingly. Conclusion: the people of Dima Hasao have always demonstrated loyalty and trust in the democratic process. Our demands are just and essential for preserving our cultural identity and ensuring fair representation. We urge your immediate attention and action to implement these demands. Thank you for your time and consideration. We look forward to a positive response and a swift resolution to our long-standing issues. Yours sincerely, 6th Schedule Protection Committee, Dima Hasao District, Haflong, Assam. And we request you to send a copy of this memorandum to His Excellency Governor of Assam, Honorable Chief Minister, Government of Assam, Honorable Chief Executive Member, NCHSC, the Principal Secretary, NCHSC, and the Deputy Commissioner, Haflong. And with that, and with the conclusion of reading of the memorandum, I would like to submit this memorandum to you with all our hopes and aspirations. कमिश्नर जी, आपके पास से आपने रिसीव किया, आप एक दो बात बोल देगा तो हमारा यहाँ का लोग का मनोबल थोड़ा अच्छा होगा। थैंक यू। यहाँ पे हमको भेजा गया है डीसी सर की तरफ से मेमोरेंडम को लेने के लिए हंगर स्ट्राइक के रिलेटेड। तो जो भी आपका डिमांड्स है, हम आपका मेमोरेंडम लिए हैं, हम जगह में पहुँचाने का कोशिश करेंगे डीसी सर के थ्रू। थैंक यू। तो आपको एक हमारे तरफ से प्रशासन को थोड़ा वर्ड ऑफ थैंक्स भी देना चाहता है। इतना दिन से 12 तारीख से आज को लेके 7 दिन हुआ है हम यहाँ हंगर स्ट्राइक में है। तो इस बीच में वेदर भी बहुत बारिश भी दे रहा था, तो और हम रोड के साइड में ही हैं। तो आपके तरफ से जो सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है उसको हम बहुत हम आभारी है। और आपके थ्रू से ऑल द सिक्योरिटी पर्सनल्स, दिन रात आप लोग ने, जब हम सोए थे फिर भी आप लोग जाग रहे थे, इसलिए ऑल द आसाम पुलिस एंड द सीआरपीएफ, आप लोग ने जो हमारा सिक्योरिटी दिया उसके लिए हम कभी नहीं भूलेंगे। ये 7 दिन हमेशा हमको याद रहेगा जिंदगी भर। उसके बाद आज यहाँ मेडिकल टीम तो प्रेजेंट नहीं है। ओह ठीक है, मेडिकल टीम आप लोग ने भी समय समय में ये 7 दिन में आके हमारा हेल्थ को चेकअप किया, और इसलिए आप लोग भी प्लीज अगर थोड़ा पास में आइए, सामने आ जाइए। तो आज हमारे ख्याल से ये डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में इतना लंबा हंगर स्ट्राइक हुआ है। जब हम लोग स्टार्ट किया हम लोग को भी मालूम नहीं था तो कैसे होगा बोल के। कल रात को हमारा एक मेंबर दीपाली हापिला जी, थोड़ा उसका प्रेशर बहुत हाई हो गया था लेट नाइट को, तो थोड़ा देर के लिए उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था सलाइन दे के। और अभी लेकिन देखो हमारा यहाँ राइट्स के लिए फाइट करने के लिए फिर आ गया है। लेकिन ये 7 दिन में मेडिकल टीम ने हमारा बहुत ध्यान रखा, इसलिए किसी का भी कुछ मेजर कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं उठा है। और इसको भगवान को और मेडिकल टीम को भी हम धन्यवाद देते हैं आप लोग का सपोर्ट के लिए भी। डॉक्टर एच भूरिल जो आप इंचार्ज थे, हम एंड हर टीम, पूरा आपका टीम
और आज भी आप लोग लास्ट हंगर स्ट्राइक का ये चेकअप के लिए आए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। एंड उसके बाद जो हमारा डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर जाना जाता है, द मीडिया, द जर्नलिस्ट। सो आज का दिन में अगर हमारा ये थोड़ा सक्सेस बोलेगा, हम लंबा रास्ता है, बहुत आगे जाना है, लेकिन जो हुआ है आज हमारा थोड़ा मेमोरेंडम को एक्सेप्ट किया गया है यहाँ में प्रशासन की तरफ से, और हमारा चार्टर ऑफ डिमांड्स में कुछ कुछ तो ऑलरेडी एड्रेस हो गया है जो बाद में हम लोग विस्तार में बताएंगे। लेकिन उसका एक श्रेय, उसका एक क्रेडिट हमारा मीडिया पर्सन ऑफ डिमा हासाओ को भी जाता है, और आप लोग का थ्रू से जो स्टेट मीडिया और नेशनल मीडिया में भी, प्रिंट मीडिया में भी न्यूज़ गया है, तो लेकिन आप लोग का थ्रू से ही गया है। तो सब हमारा मीडिया टीम, ये 7 दिन में एक दिन भी नहीं हुआ कि आप लोग ने हमें आके साहस नहीं दिया और हमारा न्यूज़ को, हमारा आवाज़ को नहीं पहुंचाया। इसलिए हम आप लोग को दिल से धन्यवाद देता है। जब तक हमारा फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी स्ट्रांग रहेगा, अटल रहेगा, तो हमारा जो राइट्स है वो कभी भी वीकेंड नहीं होगा, और हमारा डेमोक्रेसी हमेशा स्ट्रांग रहेगा, रोबस्ट रहेगा। तो ये बोल के आज हम लोग सिंबॉलिकली, पहले हम लोग ने बोला था, लेकिन आज हम लोग ये हमारा 7 दिन का अनशन हंगर स्ट्राइक को हम लोग कॉल ऑफ करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ से डिस्पर्स नहीं होंगे, हम लोग यहाँ तक शाम तक रहेंगे हम लोग। लेकिन अभी एट दिस मोमेंट 12:34 उसका ये मोमेंट में 18 तारीख को ये हमारा हंगर स्ट्राइक, जो हम लोग ने 12 तारीख को 19, तो हम लोग ने जो 12 तारीख को स्टार्ट किया था 11 बजे, 18 नहीं, हाँ, तो हम लोग 12 तारीख से जो स्टार्ट किया था उसको खत्म करते हैं। लेकिन सिंबॉलिकली मैं चाहता हूं कि हमारा जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर है यहाँ में, और हमेशा से ऑटोनोमस स्टेट डिमांड को लेके भी आए हैं, जो वन ऑफ आवर मेन डिमांड्स भी है, तो हमारा सीनियर मेंबर, मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ आप लोग के साथ में। जब हम लोग ने एक मीटिंग किया था और डिसाइड किया था कि हम हंगर स्ट्राइक में जाएंगे, तो हमारा सीनियर मेंबर श्री सूरज नाइटिंग जी, उसने बोला था कि ठीक है मैं रहूंगा, लेकिन शायद मेरा बॉडी सिर्फ 2 दिन के लिए साथ देगा, तो मैं 2 दिन के लिए तो मैं कमिट करता हूँ। लेकिन जैसे दिन गया देखा तो वो फर्स्ट से लास्ट तक वो बैठा यहाँ में। कभी कभी किसी हम लोग को मेंबर्स को सडनली जैसे कि हॉस्पिटलाइज हुआ, कोई कुछ काम से इमरजेंसी में बाहर जाना पड़ा, लेकिन वो हमेशा यहाँ रहे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा जो सीनियर मोस्ट मेंबर है, जो हमेशा से यहाँ रहा है 7 दिन भी, श्रीमती अवंतिका हफलोंगबार जी, आप मदद कीजिए हमारा सूरज नाइटिंग जी को अपना ये हंगर स्ट्राइक और ये 7 दिन का जो फास्ट है वो ब्रेक करने के लिए, उसको एक ग्लास जूस देने के लिए। तो ये 7 दिन से जो हंगर स्ट्राइक चल रहा था वो अभी जो कर लिया गया है, उठा लिया है। और अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारा जो एडवाइजर है एसएसपीसी का श्री मिहिर गोरलोसा जी, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ श्रीमती दीपाली हापिला को उसका फास्ट ब्रेक करने के लिए, उसका जूस प्रेजेंट करने के लिए। ये शायद मिहिर गोरलोसा जी और फास्ट को कंटिन्यू करने के मूड में है जैसे लग रहा है, तो इसलिए जो कष्ट किया, कल थोड़ा देर हॉस्पिटल में भी जाना पड़ा, तो बहुत पहले से ही उसका प्रेशर हाई था फर्स्ट दिन से, फिर भी वो बैठे हम लोग के साथ में। तो इतना सेक्रीफाइस करने वाला जो हमारा आज के दिन में डिमा हासाओ के लिए, और खाली डिमा हासाओ नहीं, पूरा इंडिजिनियस ट्राइब के लिए फ्रॉम कार्बी आंगलोंग ऑल्सो, श्रीमती दीपाली हापिला जी अपना फास्ट ब्रेक करने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं। फिर हमारे साथ यहाँ में बहुत स्पेशल आदमी है जो हमारा द सेकेंड मोस्ट सीनियर बोल सकता है, जिम मूर्ते जी, सूरज नाइटिंग जी को हमेशा साथ देके आया है वो दोनों, और
इवन दो उसका हेल्थ प्रॉब्लम पहले से था, वो पेन किलर टाइम टाइम में लेने लगता है, अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम है उसका, लेकिन उसने भी बोला था कि हम 2 दिन तो दे सकता है, शायद उसके बाद हम हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, ऐसे बोल रहा था। फिर भी वो 7 दिन टिका है, इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है श्रीमती अवंतिका हाफलोंगबार जी को उसका फास्ट ब्रेक करने के लिए, जूस देने के लिए। और उसके बाद मैं कन्वीनर ऑफ 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी। ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट, शायद ये जाना जाएगा बाद में हिस्ट्री में। ये तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये पब्लिक के ऊपर में है, ये जर्नलिस्ट मीडिया लोग के ऊपर में है। आप लोग ने देखा ये 7 दिन हम लोग यहाँ थे, ये कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था, बिकॉज हम लोग ने कभी भी कोई पॉलिटिकल कोई व्यक्ति को टारगेट नहीं किया। हम लोग ने कभी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग ने टारगेट नहीं किया, जैसे हमेशा यहाँ यूजुअली होता है। हम यहाँ आज खड़े हुए हैं, हमारा खुद का लोगों का डिमांड 55 इयर्स ओल्ड प्रॉमिस जो आज तक फुलफिल नहीं हुआ, आर्टिकल 244 क्लॉज ए, उसका बाद 6 शेड्यूल का प्रोटेक्शन के लिए, सो दैट हमारा 6 शेड्यूल के अंदर में हमारा काउंसिल का जो अपना इलेक्शन का जो पावर है, इलेक्टोरल रोल बनाने का पावर, हमारा गांव में जो अपना विलेज काउंसिल का ट्रेडिशनल सिस्टम है, जैसे हम अपना गांव बुरा सेलेक्ट करते हैं, उसको हम लोग बचा के रखने के लिए, अपना पॉलिटिकल वॉइस जैसे कि अपना असेंबली सीट्स और लोकसभा सीट मिलने के लिए, और यहाँ में जो अपना जमीन को बचाने के लिए, जो माइनिंग के लिए, इंडस्ट्री के लिए जो हमारा जमीन हजार हेक्टर जा रहा है, जैसे कि उमरोंगसो में जैसे जा रहा है, उसको बचाने के लिए। इसलिए आज हम लोग 7 दिन हुआ यहाँ बैठे थे और आप लोग ने साथ दिया, इसलिए मैं एज ए कन्वीनर श्री डेनियल लंगथासा जी, मैं भी आज ये फास्ट ब्रेक करता हूँ। हमारा कुछ जर्नी आज यहाँ में सक्सेसफुल हुआ है, कुछ पॉइंट्स, और बाकी जो पॉइंट्स है मेन आर्टिकल 244 है, उसको हम लोग और लेके जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी अपना फास्ट ब्रेक करता हूँ। तो उसके बाद तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, एक रह गया, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हमारा जो एडवाइजर है श्री मिहिर गोडलोसा जी, हमेशा हमको तो अभी लास्ट चेकिंग होगा, अभी चेकिंग को दे जा, प्लीज डॉक्टर कम। और मीडिया के साथ में मैं थोड़ा लिस्ट बोल रहा ना, Baik, otar bangban luman ni. ये 7 दिन का लंबा जो हंगर स्ट्राइक चला, ये आज जाके ब्रेक बहुत किया गया है। अभी मीडिया के साथ बातचीत करेंगे, मीडिया को अपने जो इस 7 दिनों का जो प्रतिक्रिया उसको पेश करेंगे और अपने डिमांड्स को लेंगे, कुछ बातें पीछे से सभी बैठी नहीं ना। हो गया लोगो, लगेगा तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, हिस्टोरिक डे है। आज डिमा हासाओ में सबसे लॉन्गेस्ट हंगर स्ट्राइक जो चला 7 दिन का, उसका आज ख़त्म हुआ है ये हंगर स्ट्राइक। और मीडिया के ज़रिए से पूरा डिमा हासाओ का लोग को
और कार्बी आंगलों को लोगों को, सब हमारा इंडिजिनियस हिल ट्राइब पीपल लोग को ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि ये 7 दिनों में हमारा जो 6 चार्टर डिमांड था उसका क्या स्टेटस है और आने वाला दिन में क्या हम लोग सोचते हैं। तो 1 नंबर बात हो गया ये 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी, ये सब जाति को लेके सब पॉलिटिकल पार्टीज और सब ऑर्गेनाइजेशंस उसको लेके और सबको वेलकम करके ये कमेटी बना था मार्च को 2024। उसके बाद इसका जो नाम है 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी, उस नाम से ही आपको पता चल जाता है कि ये 6 शेड्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग ने बनाया था। लेकिन प्रोटेक्शन क्यों चाहिए? जो सफर करता है वो तो समझ रहा है, और जो बाहर का लोग है जो नहीं समझा है उसको समझाने के लिए अभी कॉन्स्टिट्यूशन 125th अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में प्लेस हो गया है। जो हमारा नंबर 2 डिमांड है, आप देख सकता है, वो था रिवाइज द कॉन्स्टिट्यूशन 125th अमेंडमेंट बिल 2019। 2020 से ये पार्लियामेंट में था, लेकिन ये बिल में जो जो अमेंडमेंट्स, जो चेंजेस, जो बदलाव लाने वाला था 6 शेड्यूल में, वो जो बदलाव है वो हमारा एग्जिस्टिंग 6 शेड्यूल का पावर्स को खत्म करने वाला, कम करने वाला ऐसा अमेंडमेंट्स था। जो हमारा स्टेक होल्डर्स, वो लोग खुद मालूम नहीं है कि ऐसा वाला क्लॉजेस उसमें प्रेजेंट है। जैसे कि हमारा गांव बुरा, अगर यहाँ में ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल के बदले में, ट्रेडिशनल विलेज सिस्टम के बदले में पंचायती स्टाइल वाला विलेज सिस्टम आ जाएगा, तो वो हमारा ट्रेडिशनल विलेज सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए गांव बुरा लोग को ये मालूम होना जरूरी था, लेकिन गांव बुरा लोग मालूम ही नहीं है कि ये क्या नया बिल में क्या आ रहा है बोल के। वो लोग को पता ही नहीं था कि ऐसा वाला कुछ 6 शेड्यूल को बदलने वाला बिल भी पार्लियामेंट पहुंच गया है बोल के। ऑन रिकॉर्ड तो हमारा स्टेक होल्डर्स काउंसिल के तरफ से स्टैंडिंग कमेटी अंडर आनंद शर्मा आके रिपोर्ट ले लिया गुवाहाटी से, लेकिन यहां से रिपोर्ट जो गया वो सबका आवाज नहीं था, वो सबका आवाज नहीं था। गांव बुरा जो इफेक्ट होगा, गांव का लोग जो इफेक्ट होगा, वो लोग को आवाज नहीं पहुंचा वो कागज में। जो एनजीओ, कोई स्टूडेंट जिसका फ्यूचर डिपेंड करता है हमारा काउंसिल में, हमारा 6 शेड्यूल में, वो स्टूडेंट अवेयर नहीं है कि क्या बदलाव आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग डिमांड कर रहा था कि वो अमेंडमेंट बिल रिवाइज होना चाहिए, और ये डिमांड हम लोग ने मार्च से शुरू किया। पहले एक सिंपल मेमोरेंडम के तरफ से, और ये मेमोरेंडम ने हमने चाहा कि काउंसिल को रिक्वेस्ट किया कि आप एक मीटिंग बुलाइए सब स्टेक होल्डर्स को लेके, और वो मीटिंग में ये अमेंडमेंट बिल को हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि हमें अभी भी चेंजेस जो चाहिए वो आप लोग ने एक्सेप्ट नहीं किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, लेकिन हम लोग अपना डिमांड को फिर से दोहराएंगे, फिर से देंगे। लेकिन दुख का बात है कि वो मेमोरेंडम को रिप्लाई नहीं आया, इसलिए हम लोग ने फिर से और एक मेमोरेंडम अप्रैल में दिया जाके। अप्रैल में वो फिर से रिजॉइंडर दिया मेमोरेंडम को, फिर भी कुछ रिप्लाई नहीं आया। तो इसलिए हम लोग ने पहली बार सोचा कि अभी कुछ प्रदर्शन करना पड़ेगा, कुछ प्रोटेस्ट करना पड़ेगा आवाज उठाने के लिए, क्योंकि 2 बार मेमोरेंडम सबमिट करके कुछ नहीं हुआ काउंसिल को। तो हम लोग ने सोचा कि अभी हम लोग चीफ मिनिस्टर को एक मेमोरेंडम लिखेंगे, और हम लोग ने 27 मई को माईबंग में रैली किया, जहां में 7-8 हजार लोग जमा हुए माईबंग एरिया से। लेकिन फिर भी आज तक उसका कुछ रिप्लाई नहीं आया, और जो हम लोग मीटिंग चाहते थे वो कभी नहीं हुआ। तो मई खत्म होके अप्रैल खत्म हो गया, जून खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग ने सोचा अभी और हम साइलेंट नहीं रह सकते हैं, लेकिन लोगों को भी कष्ट नहीं देगा। इतना लोग, हजार लोग माईबंग में आया, हमारा बूढ़ी माँ लोग, बाबा लोग, आडा आजू लोग, लेकिन फिर भी वो लोग का आवाज नहीं देख के
काउंसिल ने, गवर्नमेंट ने कुछ भी मीटिंग कॉल नहीं किया। इसलिए हम लोग 12 तारीख से यहां में हंगर स्ट्राइक हम लोग ने शुरू किया और इसके बाद में 14 तारीख को काउंसिल ने फाइनली एक मीटिंग कॉल किया ये अमेंडमेंट का चर्चा करने के लिए। तो ये हमारा सक्सेस है, ये हमारा सक्सेस है। जिस चीज के लिए हम लोग ने बार बार मेमोरेंडम दिया, आखिरी में वो लोग को एक मीटिंग कॉल करना पड़ा और फाइनली गांव वाला लोग, स्टूडेंट्स लोग, ऑर्गेनाइजेशंस लोग, वो लोग अपना आवाज उठा सका और बहुत लोग ने अपना सजेशंस दिया कि हम नहीं चाहता है कि 6 शेड्यूल को जो बेसिक पावर है, जो मेन हम लोग का जो स्ट्रेंथ है, जैसे कि अपना इलेक्शन कंडक्ट करना, अपना इलेक्टोरल रोल काउंसिल बनाना, वो हम लोग स्टेट इलेक्शन कमीशन को दिसपुर में हम लोग भेजना नहीं चाहते हैं। ये स्टूडेंट यूनियन लोग ने बोला, गांव वाला लोग ने बोला। हमारा अपना लैंड राइट्स है, वो हम लोग को बचाना है। हम लोग अपना माइनिंग सीमेंट कंपनीज आके बिना गांव वाला को परमिशन लेके ऐसा नहीं ले जाना है, चाहे वो उमरांगसो में हो, चाहे वो कोई जगह में भी हो। ऐसा वाला डिमांड रखा हम लोग ने, गांव वाला लोग ने। उसके बाद हमारा ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल ये रिटेन होना चाहिए, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशंस लोग ने बोला, जैसे कि जाडी के नाइशो हसम लोग ने भी बोला इसको। ये अभी का जो विलेज काउंसिल है, जो ये बिल में लिखा है, वो पंचायत का कॉपी पेस्ट मारा है, कॉपी करके उसको पेस्ट कर दिया है। हमारा ट्रेडिशनल विलेज सिस्टम के बारे में वहां कुछ नहीं लिखा है, इसलिए हम लोग का ट्रेडिशनल विलेज सिस्टम होना चाहिए बोल के ये भी डिमांड रखा है। अभी आने वाला दिन में देखेगा ये क्या होगा, लेकिन मैं मीडिया के जरिए एक बात कहना चाहता हूं कि कल में हम लोगों ने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब से मीटिंग बुलाया और हम लोग को भी बुलाया वहां में श्री निरुपम चकमा जी जो मेंबर है वहां का। तो उसके साथ में हम लोग ने जब अपना मेमोरेंडम, ये सेम मेमोरेंडम जब प्लेस किया, तो निरुपम चकमा जी ने बोला कि ये थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली ये आनंद शर्मा को कमेटी टीम आके तो ऑलरेडी स्टेक होल्डर से सजेशंस ले लिया, आप लोग का काउंसिल से भी तो लिया, और वो सजेशंस को बेस करके हम लोग ने, नेशनल कमीशन ने अपना अप्रूवल दे दिया उधर में। तो इनडायरेक्टली ये हमारा गलती हो गया। हम लोग क्यों इतना समय लगा पूरा स्टेक होल्डर्स को अच्छी तरह से समझाने के लिए कि ये चेंजेस आएगा, ये बदलाव आएगा 6 शेड्यूल में तो क्या होगा, ये हम लोगों ने क्यों अच्छा से नहीं किया पहले। और अभी का सजेशंस वहां में ऐड होगा या नहीं होगा उसका चांसेस तो बहुत कम है बोल के हमें श्री निरुपम चकमा जी ने कल मीटिंग में बोल दिया। तो इसलिए अभी खाली हम लोग ये होप कर सकता है कि ये पास ना हो। अगर ये पास ना हो तभी हम लोग का जो अमेंडमेंट है, वो हम लोग का प्रोटेक्शन है, वो बच जाएगा। लेकिन अगर ये पास हो जाता है, अगर हमारा जो बाकी जीपीडीपी अभी भी विड्रॉ नहीं हुआ है, गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो एक सक्सेस हुआ है। इतना मेमोरेंडम लिखने के बाद 2020 में हम लोगों को गुवाहाटी हाई कोर्ट ऑर्डर मिलने के बाद आज फाइनली काउंसिल ने 14 तारीख को बोला कि जून को इलेक्शन ब्रांच बनाएगा बोल के, वो भी हमारा सक्सेस है, वो भी हमारा सक्सेस है। और फिर से मैं आपका मीडियम से थैंक करना चाहता हूं श्री बोहिम लांगथासा जी, जो ये केस फाइल करके वो जीत के लेके आया हाई कोर्ट से। लेकिन हमारा अभी तक मांगे पूरा नहीं हुआ है, और अगर 6 शेड्यूल का डाइल्यूशन हो जाएगा थ्रू 125 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, तो आज हम लोग डिक्लेयर करते हैं सब जितना जाति है हम लोग का, जितना हम लोग का यहाँ में अलग अलग कम्युनिटीज है, डिमा हसाओ में और कार्बी आंगलोंग में, सब हम लोग को यूनाइट होना पड़ेगा। कोई हमें यहाँ में तोड़ना चाहता है, अलग अलग भाग करना चाहता है, सरकार का तरफ से अगर ऐसा कॉन्स्पिरेसी जब आता है हम लोग को भाग करने के लिए, हम लोग को अभी यूनाइट होना पड़ेगा। और आज का दिन 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी 18 जुलाई 2024 को हम डिक्लेयर करते हैं ये दिन को ऑटोनोमस स्टेट डिमांड डे। आज का दिन ये हिस्ट्री में रह जाने के लिए आज हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि ये ऑटोनोमस स्टेट डिमांड डे हो गया।
आज का दिन से हम खुद को ऑटोनोमस स्टेट डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि हमारा कुछ भी, हमारा जितना हम लोग को दुख है कोई भी एड्रेस नहीं करता है। आज अगर हम लोग में मर जाएगा, वो लोग चाहता है सरकार का लोग कि हम लोग मर जाओ, दीपाली हापीला भी मर जाओ, डेनियल लंगथा से भी मर जाओ, लेकिन हम लोग मर जाएगा, लेकिन आपका बच्चा लुकुन काल में क्या होगा उसको सोचिए। श्री चकमा जी ने कल हम लोग को क्या बोला, आप लोग को पावर मिला है काउंसिल में अपना इलेक्टोरल रोल बनाने के लिए, आप लोग क्यों खुद नहीं बनाता है? आप लोग को गलती है ना, आप लोग को, हम लोग को यहाँ में तो हम लोग को सिर्फ शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हम लोग को प्रोटेक्शन दिया है, आप लोग ने खुद शेड्यूल ट्राइब्स का प्रोटेक्शन तोड़ा है। तो आज आप लोग किसको आप लोग को मांगेगा, किसको आप लोग प्रोटेक्शन मांगता है? ऑटोनोमस स्टेट डिमांड हर इलेक्शन में, उस दिन में हम लोग का काउंसिल का चेयरमैन बोला कि हाँ ये डिमांड जायज है, हम लोग इसको परस्यू करेंगे। कब तक परस्यू करेगा, कब तक परस्यू करेगा? आज का दिन में त्रिपुरा से फोन आके हम लोग को बोलता है कि त्रिपुरा मोथा भी हम लोग का आर्टिकल 244A को सपोर्ट करेगा, वो लोग भी हमारा सेपरेट ऑटोनोमस स्टेट को सपोर्ट करेगा बोल के, लेकिन हमारा काउंसिल, हमारा स्टेट गवर्नमेंट बार बार वादा देके सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों हम लोग को नहीं दे रहा है, क्यों हम लोग का एग्जिस्टेंस को खत्म करने चाह रहा है? आज का दिन में हम लोग का यहाँ जो अपना ट्राइबल लोग है, थोड़ा दिन बाद में हम लोग जानवर का सिर्फ एक लेवल ऊपर है, हम लोग एंडेंजर्ड स्पीसीज है। आदमी लोग जाटिंगा में आता है ये चिड़िया को देखने के लिए, क्योंकि ये चिड़िया खत्म होने लग गया है, हमें सुसाइड करता है। आज हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में 2 लाख आदमी है, 2 लाख में से ट्राइबल हम लोग कितना है? 1 लाख से थोड़ा ज्यादा है। पूरा आसाम का 3 करोड़ आबादी में हम लोग को एक्सटिंक्ट हो जाने वाला है। जस्ट 50 साल और 2 हम लोग यहाँ में हम लोग अपना जमीन में हम लोग माइनॉरिटी हो जाने वाला है। इसलिए हम लोग ऑटोनोमस स्टेट आज डिक्लेयर करता है। कोई भी मानो ना मत मानो, सेंट्रल गवर्नमेंट मानो ना मत मानो, हम लोग डिस्ट्रिक्ट के बाहर में एक गेट लगाएगा और गेट में लिखेगा ऑटोनोमस स्टेट, वेलकम टू ऑटोनोमस स्टेट बोल के हम लोग लिखेगा। और कार्बी हम लोग और डिमा हासाओ हम लोग मिल के लड़ेगा। अगर कोई पॉलिटिक्स करके हम लोग को अलग करता है तो आप लोग उनको वो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो आप लोग को अपना आदमी का अगेंस्ट में जाता है। तो इस साइड में हम लोग लगाएगा वेलकम टू ऑटोनोमस स्टेट बोल के कचार बॉर्डर में लगाएगा, और उस साइड हम लोग को लगाएगा नॉर्थ साइड में वेलकम टू ऑटोनोमस स्टेट। आज का दिन 18 जुलाई को 2024 को हाफलोंग में डीसी ऑफिस का बाहर में हम डिक्लेयर करता है सबके तरफ से, आज का दिन है ऑटोनोमस स्टेट डे। आज का दिन हम लोग सब ऑटोनोमस स्टेट हो गया है। ये इंस्पिरेशन हम लोग ने लिया है पूर्ण स्वराज मूवमेंट से। जब इंडिया और ब्रिटिश चर्चा कर रहा था और ब्रिटिश बार बार हम लोग को अपना इंडिपेंडेंस डिनाई कर रहा था, तो 1929 में ये रेजोल्यूशन पास हुआ था कि हम लोग अपना को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता है, और फाइनली वो इंडिपेंडेंस भी हुआ। और आज हम लोगों को जुड़ाना चाहता है, लेट अस ऑल कम टुगेदर। हम लोग ऑटोनोमस स्टेट है, खुद का ऊपर में डिपेंड करेगा, हम लोग खुद का ऊपर में अपना रेवेन्यू, अपना पैसा, अपना इलेक्टोरल रोल हम लोग को कोई बांटने नहीं सहेगा। टुडे इज ऑटोनोमस स्टेट डे, ये बोल के आप लोग को हम थैंक्स करता है। और